आप इमलाक के साथ शामिल होते हैं एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर, तो ये जो इनिशियल डिस्काउंट्स है आप ये ले सकते हैं। इनिशियल प्राइस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है टू फाइंड आउट कि कौन सा प्रोडक्ट जो है उसका रेंटल पोटेंशियल क्या है। दिस इज द एंटायर रिसर्च। अब ये रिसर्च हम करके अपने क्लाइंट को देते हैं रैदर कि वो खुद से करे, बिकॉज एक तो पहले उसकी ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो कर सके। सर एक प्रॉस्पेक्ट है, 51 इनकी एज है और सियालकोट में रहते हैं। इनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट रही है और वो इन्होंने 22 साल पहले की थी मरी में। तकरीबन अब उसको बेचना चाह रहे हैं तो 5 करोड़ का उनको रेट लग रहा है, स्काई विला का बताया। लेकिन क्योंकि इनकी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ही वाज थोड़ा सा इनका सवाल था कि इमलाक किस तरह मुझे हेल्प कर सकता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में और बाकी सारी चीज़ों में। अच्छा देखिए, एक चीज़ को समझना है और हमें बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, और एक माइंडसेट आप लोगों को चेंज करना है बड़ा क्लियरली। हमारा जो मॉडल है दैट इज़ नॉट अबाउट सेलिंग और बाइंग। बेसिकली वी आर नॉट इनटू सेलिंग एंड बाइंग, वी आर इनटू वेल्थ क्रिएशन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमारा जो रास्ता है, ऑल्दो उसके अंदर हमें बाइंग और सेलिंग करनी पड़ती है, बट इट इज पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस, इट इज नॉट द ओनली प्रोसेस। सो हम क्या चाहते हैं, हमारा इनिशियल फोकस होता है उन प्रॉपर्टीज के ऊपर विच कैन गिव अस गुड कैपिटल गेन्स एंड रेंटल रिटर्न्स। बिकॉज आप किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो अगर मैनेज करना चाहते हैं, so only way you can actually manage it, or it can be fruitful to you, is that it's being taken care in the longer run, not just for a short term one time sale. So we are providing 360 solution, right? The first thing we do in the process is we do our own research, right? This is of all the projects in the market, and especially we focus on the ones which we believe are going to give us higher returns, both in terms of capital gains and in rental. इसके फिर आगे there is obviously a huge process which follows after this, right? Which includes कि जी के डेवलपर का सेफ्टी हो, प्रोजेक्ट ठीक हो, उसकी फाइनेंशियल जो भी उसकी एनालिसिस हुआ है, बिजनेस फिजिबिलिटी बनी है वो ठीक बनी हुई हो, उसकी प्राइस जो है इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन, द डेवलपर, द इन्वेस्टर एंड फॉर इमलाक, एंड दैट वी आर एबल टू manage it once it is completed or finished, right? Rather than कि हम सिर्फ बेचें और उसके बाद हम उस प्रोडक्ट से बाहर आ जाए. So this is how we are actually kind of acquiring complete buildings, right? That is the plan. So there are developers who are making these buildings. We reach out to the right kind of developers, the right buildings which have the highest potential. Then we offer them, our services, that we can help you sell this building to our investors. And obviously we have a pool of investors already with us. ठीक है जी, in the previous 7-8 years, we have developed a pool of investors who are willing to invest with us on regular basis, or we are managing their entire portfolios and managing their entire rentals as well. This is the first initial step where we do this, right? Second is we do a pre-launch. So in this pre-launch, we take a certain deal from the developer where we offer certain discount. And before launching this project, we offer it to our investors who are already in our pool. The best thing about this is, without marketing or anything, we are able to achieve 20 to 30% of sales right away. So this gives that initial boost to the project as well, because a project is only feasible or viable if it can be sold. Why do you think a lot of projects don't get finished in time or they're delayed? Because they're not being able to make sales, because they don't have that feasibility. They don't understand. Either they're charging a very higher price, or either they don't have a rental feasibility post-management. Or even if they have, it's not as per our expectations, because we want to target what? We want to target more than 10% returns. Right? More than 10%, greater than 10%, not 10%, greater than 10%. We would love to go to 15 to 20%, and Alhamdulillah, we have achieved this multiple times, not once, but multiple times. With all our projects, if you look at our history,
you will see we haven't done hundreds of projects. It's very stupid कि जी ये as a if as a marketing company, if I'm going to say, because as a marketing company it will not matter to me, I can procure, acquire any project and just sell it in the market and then move away from it. But that's exactly what we are not doing. So this is the major difference. ये बहुत बड़ा difference है हमारी strategy में जो लोगों के साथ मसला होता है, राइट? तो आपने सिर्फ उनको रिसर्च एनालिसिस के बाद उनको छोड़ नहीं देना, चीज़ को बेच के छोड़ना नहीं है। आपने अपने इन्वेस्टर का पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करना है। आपने उसको स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए से गाइड शुरू करना है। जो सबसे पहले काम रिसर्च एनालिसिस से होगा, उसके बाद आप उसके लिए एक अच्छी प्राइस नेगोशिएट करेंगे एज अ बल्क डील, बिकॉज एक बंदे को वो बल्क डील नहीं मिलती, बट बिकॉज हमारे पास एक पोर्टफोलियो है, एक इन्वेस्टर है जो उसके अंदर इंटरेस्टेड है, सो वी गेट अ गुड डील आउट ऑफ इट। हम एक अच्छा डिस्काउंट लेते हैं एंड वी ऑफर इट टू आवर इन्वेस्टर्स। जो फर्स्ट कमर्स होते हैं ऑब्वियसली दे एंजॉय दिस प्री लॉन्च, सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो गुड फॉर यू कि अगर आप इमलाक के साथ शामिल होते हैं एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर, तो ये जो इनिशियल डिस्काउंट्स है आप ये ले सकते हैं। उसके बाद हमारा टारगेट है रेंटल रिटर्न्स, राइट? अगर हम 5, 7, 8%, 10% कोई टारगेट नहीं है, अब हम इसको कैसे मैनेज करते हैं? अगर मैं एक प्रॉपर्टी, राइट, जो लेट्स सपोज 2 करोड़ रुपए की है, तो मेरा मिनिमम टारगेट होगा कि इसमें से 2 लाख रुपए रेंट तो आना चाहिए। जनरली मार्केट के अंदर क्या है कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के अंदर जो है 1.25 लाख आ रहा होगा अगर आप पोजेशन में जाके लेते। तो हमारा एक मिनिमम टारगेट तो ये होगा कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर हम एक्वायर कर रहे हैं कोई इन्वेस्टर हमारे से, तो उसका 2 लाख रुपए रेंट होना चाहिए। अब इसके लिए इनिशियल प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट के अंदर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इस वक्त महंगे बिक रहे हैं, मुझे ऑफर भी है कि वो प्रोजेक्ट मैं ले लूँ और मैं उनको मार्केटिंग एंड सेल्स में ला भी सकता हूँ। लेकिन अगर एक चीज़ जो आज की तारीख के अंदर ही मार्केट की मेरी अपनी एजम्पशन के मुताबिक 20-25% ऊपर है, वो 2 करोड़ रुपए की मिल ही नहीं रही, वो मिल ही मुझे कितने की रही है? 2.5 करोड़ रुपए की। अब बेचने के लिए तो ठीक है, बट रेंट उसने भी 2 लाख ही देना है, तो अब वो 13-14% नहीं हुआ, ये रेंट जो है ना ये 8% पे आ गया या 9% पे आ गया, राइट? सो इनिशियल प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट कि कौन सा प्रोडक्ट जो है उसका रेंटल पोटेंशियल क्या है। दिस इज द एंटायर रिसर्च। अब ये रिसर्च हम करके अपने क्लाइंट को देते हैं रैदर कि वो खुद से करे, बिकॉज एक तो पहले उसकी ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो कर सके। जो भी जजमेंट करेगा, जो भी वो सोचेगा, चीज़ें करेगा, वो उतने बारीकी से और उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता जिस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर हमारे पास इस रेंटल मैनेजमेंट के लिए एक प्रोफेशनल टीम है। फिर आपके लिए या एक इंडिविजुअल बंदे के लिए मुश्किल है कि वो एक अपार्टमेंट लेता है 66 में, एक लेता है अल्फारिस में, एक लेता है डाउनटाउन के अंदर, एक लेता है फ्लैटिस में, एक लेता है गोल्ड क्रस्ट। आप 500 जगहों को, एक इस्लामाबाद में है, एक इधर है, किधर है, किधर है, पोटेंशियल सब में है, वो कैसे मैनेज करेंगे आप? आम बंदे के लिए नहीं है पॉसिबल ना, वो नहीं कर सकता। वो कभी उसका उधर कोई मसला होगा, उधर से फ़ोन आ रहा होगा, उधर से टेनेंट छोड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो असल पैसिव इनकम है वो आपकी एक्टिव इनकम बन जाएगी, बिकॉज आपको उसके ऊपर टाइम लगाना पड़ रहा है। सो हमारी जो प्रोफेशनल टीम है, देन दैट इज गोना टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस जब आपका प्रोजेक्ट जो है हैंड ओवर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो अगली सर्विस है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपकी रीसेल। अब मैंने उस दिन भी समझाया था कि डेवलपर्स नॉर्मली क्या करते हैं कि वो रीसेल अपने हाथ में रखते हैं। उसका मतलब ये है कि जनाब अगर एक चीज़ जो है वो 2 करोड़ से 4 करोड़ रुपए की हो गई है, तो आप जब, और ये मार्केट के नॉर्मल प्रैक्टिस है कि वो आप जब जाएंगे डेवलपर के बेचने के लिए जाएंगे, क्योंकि आप तो उधर बैठे नहीं हुए एज एन इन्वेस्टर, तो क्या होता है डेवलपर के पास ऑफर आती है 4 करोड़ रुपए की, वो कहता है जी 3.5 या वो कहता है 3, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज बिल्ली को आपने दूध की रखवाली पे रख लिया। क्योंकि एक तो वो स्ट्रेंथ में है, वो डेवलपर है, ठीक है, बिल्डिंग का कंट्रोल उसके पास है, उसने साइन मारने आपकी ट्रांसफर के ऊपर, ठीक है। हाँ,
अगर आप एफर्ट करेंगे, चीज़ें करेंगे, आउट ऑफ द मार्केट को सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से डेवलपर ने काफ़ी हद तक अपनी मैनिपुलेशन की होती है। सो हमें क्या ज़रूरत है, इसी के लिए फिर हमारा जो सेल रीसेल का जो प्लान है, जो हमारे पोर्टल के ऊपर आ रहा है, जिसके ऊपर जो है आपकी पूरी आपके अपार्टमेंट की हिस्ट्री मेंटेन हो रही होगी, क्लैरिटी से, ट्रांसपेरेंसी से, और उसी पे ही मिलेगी।